اس کے بعد سر جو انلٹرڈ تھے اور شیخ ریاض صاحب. Honor worthy our chief guest, Shri Dr. N. Upendra Reddy ji, Advisor Center for Innovation and Public System, and also Professor NCERT. Worthy Chief Education Officer. ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہر ایک اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں. سبھی حضرات کا میں تہہ دل سے لرنرز، مینٹرز اور ان کے ٹیچرز کا بہت ہی شکر گزار ہوں. لرنرز ان کے بہت ساری مشکلات ہیں، ان مشکلات کو ایک طرف ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے اور ہم نے بھی اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیا. لیکن جب تک ان کا ساتھ نہ ہوتا تھا ہم اس کٹھن مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. یہ انہی کی بدولت ہے. مینٹرز کا میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں، لرنرز کا میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں. ان کے بہت سارے تقاضے 48 ایئرس سے ہے وہ، تو جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، سگنیچر کرنا نہیں آتا، بینک جا کے وہ فراڈلنٹ ان کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کو خود کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کتنا اماؤنٹ نکال رہے ہیں، کتنا ہم کو ڈرافٹ لکھنا ہے، ہمیں کس جگہ پہ جانا ہے، بورڈ پڑھنا آنا چاہیے. تو ہماری بیسیکلی اس کے ریگارڈنگ میٹنگس ہو گئی. تو یہ ایک پروگرام بن گیا مشعل گاش کے نام سے. تو ٹیچرس نے اس میں ہم نے No, financial literacy is one of the backbones of NRLM. Unless and until our members have and linking them to financial institutions wherein they can take loans and go for sustainable livelihood. But how you take this program forward, this Masala Gash program? What is your role? And So our you role, felt that this is a very important thing. yes. So what is your role there? Our role was to What you did, not I'm not asking we the will- role. What you did in the program? What we did was we took up this initiative in all the 4 blocks of district Gandhinagar. We just made a list of the people who are not able to mark their signatures in the banks and all. And our team at the clusters collaborated with the education department and worked with them in educating those ladies. What will be your saying today? Regarding this event, this Mashale Gash, my like if I would talk to it's not possible for me to reach everywhere, but I address where लिटरेसी रेट हमारा बहुत डाउन था, हमारे डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही डाउन था. चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार हमारी मीटिंग ली तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप लिटरेसी रेट बताओ डिस्ट्रिक्ट का. तो हमने बताया कि 45% हमारा फीमेल का जो है लिटरेसी रेट है और 59% जो है मेल का है. तो उस पर हमको बड़ी नाराज़गी हुई. उन्होंने कहा कि इतना डाउन क्यों है आपका लिटरेसी रेट. तो डी साहब भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे तो उन्होंने डी साहब ने फिर उस बात को बहुत लिया और फिर बाद में उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया और एक ये मशाल गाह जो है कैंपेन इसका लॉन्च की उन्होंने कि लिटरेसी रेट हम किस तरह से अब कर सकते हैं. तो फिर उन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से और बहुत दूसरे डिपार्टमेंट से भी ये मीटिंग्स ली, डिस्कस किया इसको. तो फिर इसका एक प्लान बना करके तो फील्ड में हम उतरे. तो इसमें सबसे पहले इसमें सर्वे किया गया, आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू सर्वे हुआ. फिर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स भी उसमें लगाए गए, सर्वे हुआ तो तलाश सर्वे के नाम से. तो फिर उसके बाद हमारे पास जब आइडेंटिफाई हो गए हमारे पास कितने इलिटरेट लोग हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, तो उन लोगों को फिर हमने पढ़ाने के लिए एक प्लान बनाया. टीचर्स उनके साथ मैपिंग की गई. एक टीचर को एक इलिटरेट दिया गया. फिर बच्चों को भी अवेयर किया गया. हमारे स्कूल्स में बहुत सारे प्रोग्राम इसके बारे में ऑर्गेनाइज किए गए, अवेयरनेस लाई गई कि हर पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, लोगों को अवेयर किया गया. तो फिर टीचर्स ने बहुत बड़ा ये एक समझो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया. उन्होंने अपनी यानी जो वर्किंग आवर्स के अलावा उन्होंने काम किया. सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले वो 1 घंटा आधा घंटा हर जो उन्होंने एक इलिटरेट लिया था जिसके साथ मैपिंग हुई थी उसको पढ़ाते थे, सुबह भी और शाम को भी. तो ये तकरीबन 3 महीने तक ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहा. तो उसके बाद हमें फिर डीसी साहब ने इस थर्ड पार्टी से इसका ये अपना
सर्वे किया, चेक किया, उन्होंने क्रॉस चेक किया, तो फिर ये डिक्लेयर हुआ। इस वक्त हमारा जो है 89% पॉइंट कुछ जो है इस वक्त लिटरेसी रेट बढ़ गया हुआ है। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं इन्होंने एक मिशन मोड पे लिया था। इस माशाअल्लाह लिगाश प्रोग्राम का बस यही मकसद था कि 100% जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो कवर करना है। तो इसमें एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरा वो जो है ICDS डिपार्टमेंट जो है सोशल वेलफेयर का इसमें इन्वॉल्व किया गया था। तो उसमें एक सर्वे हुई थी जिस सर्वे में ये देखा गया था कि कितने जो है ओल्ड एज पीपल जो है वो अनलेटर्ड हैं, इलिटरेट हैं। तो उनको फिर हमने टीम्स बनाई, हम अपने टीचर्स की एक टीम बनाई हमने, फिर वो घर घर जाकर इनको उन्होंने थोड़ा लिखना पढ़ना, जो बिल्कुल अनपढ़ थे जिनको एक लेटर भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था, माशाल्लाह तो ये एक सक्सेस हुआ यहाँ पर कि आज उन्हीं लर्नर्स को हमने यहाँ पर बुलाया है और सेंटर से हमारे जो एडवाइजर साहब आए हैं इसी को देखने के लिए कि इस प्रोग्राम का क्या मकसद था कि कहाँ किस हद तक ये कामयाब हुआ। तो माशाल्लाह यहाँ पर जितने भी लर्नर्स हमने लाए हैं तो सब लोग इस वक्त लिखना पढ़ना जानते हैं। जो अपना नाम भी नहीं जानते थे, अंगूठा करते थे, वो लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, और अगर बाज़ार में जाएँ वो बोर्ड वगैरह वो खुद पढ़ सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका पूरा क्रेडिट जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर गांधरबल उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने ये मिशन मोड पे लिया था। और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा इस मंच से कि उन्होंने ये एक सक्सेस के तौर पर जो है कामयाब प्रोग्राम कराया और यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है बढ़ गई। तो इस जोन में, अपनी जोन की बात करूँ, कंगन जोन में तकरीबन हमने 10,000 अनलेटर्ड पीपल को हमने वो लिटरेट कराया, लिटरेसी रेट कराया। शुक्रिया।